work, energy and power. So what is work? So before discussing about the work and its type, before defining the work and its type, we are considering a situation. Suppose we are taking an object. Consider taking an object of mass m which is placed on a horizontal floor. ये आपने एक फ्लोर रख दिया, horizontal floor है, और उस फ्लोर पर आपने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया. Now you are applying a force on that object. Due to that force, object is displaced from its initial position. ये ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन है, लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, इस पर फोर्स अप्लाई किया, तो इस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट क्या हो गया, डिस्प्लेस हुआ. ठीक है, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ कि ये इसकी एक्चुअल पोजीशन थी और इसके कुछ टाइम बाद ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया ड्यू टू दिस फोर्स. As we pull the object with the help of force, object displaced from its initial position, and that is a displacement traveled by the object due to the force. So work is done by the agency. When agency apply the force on the object or agency pull the object with the help of force, due to that force, if the object is displaced from its position, then work is done by the force or work is done by the agency. देखिए फोर्स अप्लाई होने के बाद ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होना चाहिए. यदि डिस्प्लेस नहीं होता है तो वर्क डन नहीं होगा. विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, इफ ऑब्जेक्ट डजंट डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स पोजीशन, then work is not be done by the force or work is not done by the external agency. जैसे सपोज देखिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं. ये आपके सामने वॉल है, ठीक है, इस वॉल को मैं पुश कर रहा हूं. नाउ अप्लाइंग द फोर्स, इस तरीके से इस पे फोर्स लगा रहा हूं, बट दिस वॉल डजंट पुश फ्रॉम इट्स पोजीशन. सो इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स वर्क इज नॉट टू बी डन. फिजिक्स की टर्म में ये वर्क नहीं होगा. फिजिक्स की टर्म में वर्क क्या बोला जाता है? When we apply the force on object, and if due to that force, if object is displaced from its position, then work is done by the force. Sir, can we say that if a change in shape or a shape, then the work is done? वेट बेटा, मैं अभी टाइप डिस्कस ही कर रहा हूँ, वही टाइप डिस्कस कर रहा हूँ. ठीक है, पहले मैं वर्क को डिफाइन कर रहा हूँ. व्हाट इज वर्क? तो work done by the force or agency is equal to product of equal to The product of force applied at the system. product of force applied Right, and the distance. and displacement. The distance. So work done by the force or agency is equal to the product of force applied and the displacement due to that force. So work done is F into S. Work done क्या होगा? F into S. ठीक है. नाउ इट्स SI यूनिट. SI यूनिट क्या होगा वर्क डन का? Newton to meter. ठीक है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर. सो इट इज न्यूटन इनटू मीटर. क्या हो जाएगा? न्यूटन इनटू मीटर. और इट इज आल्सो नोन एज जूल. क्या बोलते हैं? जूल. तो SI यूनिट इज न्यूटन इनटू मीटर और जूल. So work done by the force or external agency is equal to force into displacement. Is it clear?
राहुल, मिश्री, मेधा, कवेश, Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया? Now I am telling type of that physical quantity कि ये किस तरीके की क्वांटिटी है, वेक्टर है या स्केलर. So it is a scalar quantity. Means it required only magnitude. It requires only magnitude. It doesn't require to represent it any direction. ये डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होता. इसमें सिंपली क्या चाहिए रहता है, मैग्नीट्यूड चाहिए रहता है. ठीक है. अब देखिए इसका ऐसा यूनिट है जूल. तो बहुत बार डेफिनेशन में आता है डिफाइन 1 जूल. क्या आता है? डिफाइन 1 जूल. तो 1 जूल को कैसे डिफाइन करेंगे? So as we discussed that W is equals to F into S. So if F is equals to 1 Newton and S is 1 meter, then work done is 1 joule. So how can we define that 1 joule is work done, या फिर ऐसा बोल सकते हैं work done by force is said to be 1 joule if 1 Newton force Applied on 1 mass, 1 gram. 1 Newton force displaces the object By 1 meter. by 1 meter. If 1 Newton force displaces the object by 1 meter, then work done by the force is said to be 1 joule. Is it clear? Yes, sir. ठीक है. यदि 1 न्यूटन फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हो रहा है तो वर्क डन बाय द फोर्स कितना होगा? 1 जूल. नाउ we discuss the type of force, sorry type of work. क्या डिस्कस करेंगे? टाइप्स ऑफ वर्क. ठीक है. तो वर्क कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. There are 3 types: positive work, Negative work, and zero work. and zero. Positive work, negative work and zero work. ठीक है. सो फर्स्ट है पॉजिटिव वर्क. वर्क डन बाय द फोर्स. Sir, इसका video भी- यस बेटा. सर आज आप इसका वीडियो भी पोस्ट कर दोगे सर? हाँ मैं कर दूंगा बेटा. वर्क डन बाय द फोर्स is said to be positive if displacement of object due to applied force is in the direction of force. मतलब work done by the force is said to be positive if the displacement of object due to the applied force is in the direction of force. मतलब फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हो रहा है जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई है. डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. मींस both the displacement and force is in the same direction. Then work done by the force is said to be positive. जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस पर मैंने फोर्स अप्लाई किया और इसकी वजह से ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होकर यहां पहुंचा. तो देखिए डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों एक ही डायरेक्शन में. सो वर्क डन क्या हो जाएगा?
plus F into S. So that is called positive work. जैसे देखिए, work done by force due to gravity. जैसे एक ऑब्जेक्ट है, मैंने इस साइड पर प्लेस किया है, now it falls freely. तो ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है? It displays downward and force due to gravity is also acting downward. So the work done by the gravity is positive. Work done by the gravity is positive. तो इसका एग्जांपल मैं क्या लिख सकता हूं? Work done by gravity when object falls freely. Yes. सर मतलब कि जो पॉजिटिव वर्क होगा सर, वो असल में तब होगा सर जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन के अंदर यस, जैसे देखिए मैं डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं. जैसे ये ऑब्जेक्ट मैंने यहां पर प्लेस किया, एक हाइट पर है, यहां पर है, ठीक है, h हाइट पर. अब फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है, क्योंकि अर्थ जो फोर्स लगा रही है वो नीचे की तरफ है, और ऑब्जेक्ट इज आल्सो फॉलिंग डाउनवर्ड. डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में. कुछ टाइम बाद ऑब्जेक्ट यहां अर्थ पर आ जाएगा. So displacement is also downward and force due to gravity is also downward. So work done is positive. तो वो work done क्या बोला जाएगा? Positive work. So work done by the force is said to be positive if the displacement of object due to applied force in the direction of force. अब negative work done just इसका opposite. क्या होगा? Negative work done इसका opposite. Work done by the force is said to be negative if displacement of object due to the applied force in the opposite direction of applied force. जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. तो इसका एग्जांपल क्या होगा? देखिए, मतलब मैं फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन वी अप्लाई द ब्रेक्स ऑफ अ फास्ट मूविंग कार. एक फास्ट मूविंग कार है एंड इट अप्लाइज द ब्रेक. तो ब्रेक जब लगेंगे तो क्या होगा? फोर्स पीछे की डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? कार का आगे की डायरेक्शन. कार क्या होगा? थोड़े टाइम बाद कार आगे जाके स्टॉप हो जाएगी. सो इन दैट सिचुएशन वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज नेगेटिव, क्योंकि ब्रेक अप्लाई पीछे की तरफ लगाया तो अप्लाइड फोर्स पीछे की तरफ है, बेसिकली फ्रिक्शन पीछे की तरफ है, एंड डिस्प्लेसमेंट कार का आगे की तरफ हो रहा है. तो that work done is negative. या फिर हम सेकंड एग्जांपल ले सकते हैं, that work done by gravity when object is thrown vertically upward. When object is thrown vertically upward. जैसे देखिए यही एग्जांपल, ये ऑब्जेक्ट है which is placed on a horizontal floor. Now I am throwing this object vertically upward. ऊपर की डायरेक्शन में थ्रो किया, so it will be reaches to after certain time it will be reaches here. यहाँ पहुंच गया. तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की डायरेक्शन में हुआ, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की डायरेक्शन में हुआ और फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की डायरेक्शन में. फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की डायरेक्शन. नेगेटिव वर्क डन के दो एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस किए. एक तो मैंने डिस्कस किया वर्क डन बाय द ग्रेविटी व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड. फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है. और सेकंड एग्जांपल मैंने डिस्कस किया व्हेन वी अप्लाई अ ब्रेक ऑन द फास्ट मूविंग कार. द अप्लाइड फोर्स इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन बट डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो दैट इज द सिचुएशन ऑफ नेगेटिव वर्क. Is it clear? Yes.
सर एक डाउट है हाँ। कि सर जैसे कि आपने बताया कि जो फास्ट मूविंग कार है तो उसको फास्ट मूव करने के अंदर भी तो फोर्स जा रहा है सर, उसको भी तो फोर्स लगा है उसके हाँ, तो अंदर, सर, उसके वो जैसे इफ द कार, देखिए इफ द कार इज एक्सेलरेटिंग, तो एक्सेलरेट करने के लिए जब ब्रेक अप्लाई करूंगा, मतलब मैं एक्सेलरेटर अप्लाई करूंगा, सो फोर्स इज अप्लाइड, सो एट दैट सिचुएशन फोर्स इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो वो पॉजिटिव वर्क डन हो गया। सर तो वो पॉजिटिव वर्क हो जाएगा। हाँ, वो पॉजिटिव वर्क होगा। और जब कार डी एक्सेलरेट होगी तो फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन इज नेगेटिव। मतलब देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव वर्क डन, फोर्स और वर्क डन, सॉरी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव वर्क। सर यानी जब है ना पूरा जब फ्रिक्शन आता है तब है ना आपको नेगेटिव हो जाता है। Yes, yes. Now zero work done. Now work done by the force is said to be zero. When it is sir मैं बताऊं Now if the displacement of object due to applied force is in perpendicular direction of applied force. तो डायरेक्शन फोर्स मतलब force and displacement is in perpendicular direction. Work done by the force is said to be zero if displacement and the force is in perpendicular direction. And its best example is uniform circular motion. इसका जो बेस्ट एग्जांपल होगा वो होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए when the object is travel in a circular path with a constant speed, देखिए फर्स्ट चैप्टर मोशन के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं, when object is travel in a circular path with a constant speed, that is called uniform motion. So in the uniform motion, speed is uniform but velocity is continuously changes. So at every instant of time velocity is like that. तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होता है, तो डिस्प्लेसमेंट देखिए इस डायरेक्शन में हुआ। एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम डिस्प्लेसमेंट इज टेंजेंशियल और फोर्स जो होगा वो ऐसे रहेगा। फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, तो दैट इज कॉल्ड जीरो वर्क। That is called zero work. तो ये समझ नहीं आया। देखिए work done or work done by the force is said to be zero when the displacement and force are perpendicular. देखिए ये displacement और force perpendicular है। जब भी ऑब्जेक्ट आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ट्रेवल करता है तो उसकी स्पीड यूनिफॉर्म होती है। स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट होती है, लेकिन वेलोसिटी वेरिएबल होती है। वेलोसिटी वेरिएबल क्यों है? क्योंकि every instant of time the direction of motion is continuously changes. हर इंस्टेंट पर मोशन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो देखिए यदि मैं इस पॉइंट पर यदि वेलोसिटी देखूं तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी चेक करूं तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, इस पॉइंट पर यदि वेलोसिटी चेक करूं तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, इस पॉइंट पर चेक करूं तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। डायरेक्शन चेंज है लेकिन स्पीड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। मतलब डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा? इस तरीके से टेंजेंशियल। और फोर्स की जो डायरेक्शन होती है व्हेनेवर ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग अलोंग द सर्कुलर पाथ, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ होता है। और इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, सो दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देखिए यहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है? परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन बाय द फोर्स इज जीरो। वर्क डन बाय द फोर्स इज जीरो। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ट्रैवल करता है तो उसकी एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। क्यों? क्योंकि वर्क ही नहीं होगा तो एनर्जी का क्या होगी? कंज्यूम ही नहीं होगी, क्योंकि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। आगे हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। जब कोई
वर्क करेगा तभी तो एनर्जी खर्च होगी। जब आप कोई काम करेंगे तभी तो आपका एनर्जी कंज्यूम होगा। तो यहाँ पर कोई भी वर्क नहीं हो रहा है तो एनर्जी इज रिमेन कंजर्व। तो जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा तो एनर्जी कंजर्व रहेगी। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ वर्क डन। इज इट क्लियर? सर हमको वापस कनेक्ट होना। नहीं बेटा, कनेक्ट नहीं होना। कितना टाइम बाकी है? सर 2 मिनट बाकी है। ओके, अब जल्दी से मैं बता रहा हूं कंडीशंस इन विच वर्क डन is 0. In which conditions work done is 0? Conditions in which work done is 0. तो पहला कंडीशन कि when no force is applied on object, यानी फोर्स ही 0 हो जाए। फोर्स ही नहीं लगेगा तो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस ही नहीं होगा, डिस्प्लेस नहीं होगा तो वर्क डन 0 होगा। सेकंड कंडीशन, व्हेन नो डिस्प्लेसमेंट occurs in object position due to force। ऑब्जेक्ट पर फोर्स तो अप्लाई किया लेकिन उसकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आया, वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं हुआ, यानी S 0 है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि एज आई एम पुशिंग द वॉल को मैं पीछे की तरफ धक्का दे रहा हूं लेकिन वॉल अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हो रही है, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो फिजिक्स की टर्म में वर्क डन नहीं बोला जाएगा। फिजिक्स की टर्म में वर्क डन तभी होगा जब ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगेगा और उस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट होगा, तभी वर्क डन बोला जाएगा। और तीसरी कंडीशन जो अभी हमने डिस्कस करी, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होंगे तो वर्क डन 0 होगा। सो इन दीज 3 कंडीशंस वर्क डन बाय द फोर्स इज सेड टू बी 0। या तो ऑब्जेक्ट पे फोर्स ही ना लगे, फोर्स तो लग रहा है लेकिन उस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तभी वर्क डन 0 होगा। और तीसरा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो वर्क डन बाय द फोर्स 0 होगा। इज इट क्लियर? So that is work, types of work and condition in which work done by the force is said to be 0. Is it clear? So that is all about the today's session. Okay, thank you.